آپ کو بتائیں پاکستان نے ایران کی نظرثانی شدہ تجاویز امریکہ سے شیئر کر دی۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق پاکستان نے ایرانی تجاویز اتوار کی رات امریکہ کے ساتھ شیئر کی۔ نظرثانی تجاویز کا مقصد ایران امریکہ جنگ کا خاتمہ یقینی بنانا ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں ایران اور امریکہ نے حالیہ تجاویز پر رد عمل اور تبصروں کا تبادلہ کیا ہے۔ پاکستان کی ثالثی میں مذاکراتی عمل مسلسل جاری ہے۔ ایران کی خطے کے کسی بھی ملک بشمول UAE کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں۔ متحدہ عرب امارات کو حالیہ واقعات سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ایران اور عمان کی تکنیکی ٹیموں نے ملاقات کی۔ آبِ ہرمز میں محفوظ آمد و رفت کے لیے نظام پر بات چیت ہوئی۔ امریکہ نے نئی تجاویز میں کچھ پابندیاں اٹھانے کی حامی بھری ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق مذاکراتی عمل کے دوران ایرانی تیل پر عائد پابندیاں اٹھا لی جائیں گی۔ ایران نے تمام پابندیاں اٹھانے کا مطالبہ کیا تھا جو امریکہ نے مسترد کر دیا۔ امریکہ نے حتمی معاہدے تک تیل پر عائد پابندیاں اٹھانے کی تجویز دی۔ دوسری جانب امریکہ کا ایران سے 400 کلو افزودہ یورینیم منتقل کرنے کا مطالبہ، واشنگٹن کا ایران کو جنگی نقصان کے معاوضے کی ادائیگی سے بھی انکار۔ امریکی مطالبات کی نئی تفصیلات سامنے آ چکی۔ ایرانی خبر ایجنسی فارس نیوز کی رپورٹ کے مطابق ایران کے صرف ایک جوہری مرکز کو فعال رکھنے کی اجازت دی جائے گی۔ امریکہ کا منجمد اثاثوں کا 25% حصہ بھی جاری کرنے سے انکار۔ جنگ بندی کو بھی مذاکرات سے مشروط کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کا ایران کے خلاف پھر جنگی آپشن پر غور۔ امریکی نیوز ویب سائٹ کی امریکی حکام کے حوالے سے رپورٹ۔ صدر ٹرمپ نے کل سچویشن روم میں قومی سلامتی ٹیم کا اہم اجلاس طلب کر لیا۔ ایران کے خلاف فوجی آپریشنز پر غور ہوگا۔ CCN کے مطابق ٹرمپ نے ہفتے کے روز قومی سلامتی ٹیم سے آئندہ کے لاہ عمل پر گفتگو کی گئی۔ پینٹاگون نے ایران میں توانائی کے بنیادی ڈھانچے اور ممکنہ حملوں کے منصوبے تیار کر لیے۔ امریکی کارگو طیارے اسلحہ اور گولہ بارود لے کر تل ابیب پہنچ گئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسلحے کی ترسیل ایران کے خلاف دوبارہ جنگ کی تیاریوں کا حصہ ہے۔ 24 گھنٹے کے دوران جرمنی میں امریکی اڈوں سے اسلحے کی ترسیل کی۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات سے کبھی بھی انکار نہیں کیا۔ تہران کے ساتھ صرف باعث طریقے سے ہی بات چیت ہو سکتی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا تقریب سے خطاب، کہا بات چیت نہیں کریں گے تو کیا ہمیشہ جنگ ہی کرتے رہیں گے؟ یہ کہنا درست نہیں۔ صرف دشمن مشکلات کا شکار اور ایران مکمل طور پر خوشحال ہے۔ دشمن کو بھی مسائل ہے اور ہمیں بھی مسائل درپیش ہیں۔ ایران روزانہ 100 ملین لیٹر تیل پیدا کرتا ہے۔ تہران کی ضروریات 150 ملین لیٹر تک پہنچ چکی ہے۔ تیل کی پیداوار میں کمی سے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ ایران کے لیے وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ ایرانی رہنماؤں کو فوری طور پر حرکت میں آنا ہوگا ورنہ ان کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایک بار پھر ایران کو دھمکی، کہا وقت کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اب بھی ایران معاہدہ سمجھتا ہوں، چاہتا ہے کہ ہم بھی ڈیل چاہتے ہیں لیکن حالات سازگار نہیں۔ صدر ٹرمپ کا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ پوری کوشش ہے ایران امریکہ مذاکرات ایک اور دور اسلام آباد میں ہو۔ ہم دوسرے دور اور امن کے حوالے سے پر امید ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا برطانوی اخبار سنڈے ٹائمز کو انٹرویو، کہا پاکستان اپنی تاریخ کے روشن ترین دور سے گزر رہا ہے۔ دنیا میں پاکستان کو ایماندار ثالث کے طور پر تسلیم کیا جا رہا ہے۔ عالمی قیادت کو پاکستان پر مکمل اعتماد ہے۔ وزیر اعظم کی مذاکرات میں فیلڈ مارشل اور وزیر خارجہ کے کردار کی بھی تعریف، کہا افغانستان سے کہا تھا کہ ضمانت دیں دہشت گرد افغان سرزمین استعمال نہیں کریں گے۔ پاک بھارت جنگ میں صدر ٹرمپ مداخلت نہ کرتے تو جنوبی ایشیا میں بڑی تباہی ہوتی۔ وزیر اعظم کی نیوکلیئر پاور پلانٹ پر ڈرون حملے کی شدید مذمت۔ شہباز شریف کا متحدہ عرب امارات کی قیادت اور عوام سے مکمل یکجہتی کا اظہار، فری کین سے تحمل کی اپیل۔ ایکس پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی قانون کے تحت ذمہ داریاں پوری کی جائیں۔ خطے میں امن اور استحکام کے لیے سفارتکاری اور مذاکرات ناگزیر قرار۔ کشیدگی میں کمی کے لیے سیاسی اور سفارتی راستہ ہی واحد حل ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ جوہری تنصیبات کو جان بوجھ کر نشانہ بنانا بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ جوہری تنصیبات پر حملے بین الاقوامی انسانی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔
फरीकैन तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए आलमी कवानीन की पासदारी करें, किसी भी ऐसे इकदाम से गुरेज करें जिससे कशीदगी बढ़ने का खदशा हो। प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रोका। पाकिस्तान ने कहा प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकें तो मुआहदे की तरफ बढ़ सकते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा पाकिस्तान की दरख्वास्त के बाद मंसूबा रोकने पर इत्तेफाक हुआ। सिफारतकारी को मौका देने के लिए हमले न करने का फैसला किया। अमरीकी सदर ट्रंप भी सिफारतकारी के हक में हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात से आगाह हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मिलिट्री सेक्रेटरी मोहसिन रिज़ाई का बयान। कहा मुत्तहिदा अरब अमारात को इसराइल की साजिशों में नहीं उलझना चाहिए। अमारात को मालूम होना चाहिए ईरान के सब्र की हद है। तेहरान ने अबू धाबी के साथ दोस्ती के दरवाजे बंद नहीं किए। खित्ते के तमाम ममालिक के साथ दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। अमरीका खित्ते के ममालिक को ईरान से डराने के एजेंडे पर गामजन है। आपने हुर्मुज़ तिजारत के लिए खुला है। लश्कर कुशी और बदअमनी फैलाने वालों के लिए आपने हुर्मुज़ बंद है। बेहतर कारकर्दगी पर वजारतों को तरक्याती बजट में तरजीह देंगे। ऐसे तरक्याती मंसूबों में पैसा लगाया जाएगा जिनके नताइज यकीनी होंगे। पानी के ज़खायर और पन बिजली के मंसूबे तरक्याती बजट खर्च करने की अवलीन तरजीहात में शामिल हैं। पानी के ज़खायर को बढ़ाने के मंसूबे को भी तरजीह दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत रवां बरस के तरक्याती बजट और आइंदा माली साल के लिए मंसूबों पर जायजा इजलास हुआ। पांडा बॉन्ड के कामयाब इजरा और इसकी मार्केट में पजीर आय पर वज़ीर खजाना की तारीफ की गई। पंजाब में चैलेंजेस पर काबू पाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बाको में इंटरनेशनल वर्ल्ड अर्बन फोरम से खिताब। कहा शहर साफ, सड़कें नहीं, इंसानों की तरक्की से मुंसलिक होते हैं। समाजी और मुआशी अदाद-ओ-शुमार के लिए पंजाब इकोनॉमिक रजिस्ट्री सर्वे शुरू किया गया। हाउसिंग के शोबे में अपनी छत अपना घर का इनकलाबी मंसूबा शुरू किया गया। पंजाब में 2000 देहात को जदीद सहूलियात से आरास्ता कर रहे हैं। देही इलाकों की तरक्की मसावी सहूलियात की फराहमी के लिए अहम है। रवाबत में इजाफे के लिए शाहराहों और बुनियादी ढांचे को तरक्की दे रहे हैं। मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस मद्देनजर रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को तरक्की दे रहे हैं। सियाहत के शोबे की तरक्की पर भी तवज्जो मरकूज है। SCO ने भी लाहौर को अहम सकाफती शहर करार दे दिया। सदर इल्हाम अलियूफ की क़यादत में आज़रबाईजान की तरक्की काबिल तहसीन है। मरियम नवाज की बाको में इंटरनेशनल वर्ल्ड अर्बन फोरम आमद। आज़रबाईजान के सदर और उनकी अहलिया ने मरियम नवाज का इस्तकबाल किया। इल्हाम अलियूफ और अहलिया का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साथ ग्रुप फोटो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज़रबाईजान के सदर की खुसूसी मेहमान हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कतर के वज़ीर ममलिकत बराए खारजा मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ अल खलीफ़ी से टेलीफोनिक रब्ता किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर दोनों जानिब से इस बात पर जोर दिया गया कि इलाकाई चैलेंजेस से निमटने के लिए मुज़ाकरात और सिफारती रवाबित इंतहाई अहम हैं। कतरी वज़ीर ममलिकत मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ अल खलीफ़ी ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार और जारी सिफारती काविशों को सराहा। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने इस अज़्म का आयादा किया कि पाकिस्तान खित्ते और दुनिया में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के मुश्तरका अहदाफ के फ़रोग़ के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। और यहाँ आपको बताएंगे चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी भारत जाएंगे या नहीं, रवां हफ्ते अहम फैसला मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की रवां हफ्ते मुलाकात होने का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात इस्लामाबाद में होगी, जबकि मुलाकात मोहसिन नकवी की ईरान से वापसी पर होगी। ज़राए ने बताया कि मुलाकात में मोहसिन नकवी ICC की जानिब से ICC बोर्ड मीटिंग और IPL का फाइनल देखने की दावत के हवाले से बात करेंगे। वाज़ेह रहे कि ICC बोर्ड मीटिंग का इजलास 30 और 31 मई को भारतीय शहर अहमदाबाद में शेड्यूल है। ICC ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को 31 मई को अहमदाबाद में शेड्यूल IPL का फाइनल देखने के लिए दावत दे रखी है। याद रहे कि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की भारत जाकर मीटिंग में शिरकत और IPL का फाइनल देखना पैट्रन इन चीफ शहबाज शरीफ की इजाजत से मशरूत है।
वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को CNG सेक्टर को गैस फराहमी की मुअत्तली पर ख़त मसला हल करने का मुतालबा किया। ख़त के मतन में कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा कुदरती गैस पैदा करने वाला बड़ा सूबा है, सूबे को आइनी हक से महरूम ना किया जाए। सूबा करीबन 494 MMCFD गैस पैदा करता है, जबकि इस्तेमाल सिर्फ 120 MMCFD है। खैबर पख्तूनख्वा के CNG सेक्टर को 36 से 40 MMCFD गैस दरकार है, जो खाद के शोबे को मुंतकिल की गई। CNG सेक्टर को गैस बंदिश से सूबे में बेचैनी और अमन व अमान के मसाइल पैदा होने का खदशा है। खत में मजीद कहा गया कि आइन के आर्टिकल 158 के तहत गैस पैदा करने वाले सूबे को गैस इस्तेमाल का पहला हक हासिल है। पेशावर हाई कोर्ट भी CNG स्टेशन की बंदिश को गैर मुनसिफाना करार दे चुकी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान की जानिब से मुल्क भर में नाफिज पेट्रोलियम लेवी निज़ाम को वफाकी आईनी अदालत में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त में नई मुतारिफ करदा क्लाइमेट सपोर्ट लेवी को भी चैलेंज किया गया है। पेट्रोलियम लेवी और क्लाइमेट सपोर्ट लेवी के खिलाफ वफाकी आईनी अदालत में एडवोकेट इमरान शफीक के जरिए आईनी दरख्वास्त दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि पेट्रोलियम लेवी आईन पाकिस्तान, पार्लिमानी बालादस्ती, वफाकी निज़ाम, बुनियादी हुकूक और कानून की हुक्मरानी के खिलाफ है। अमीर जमात इस्लामी ने इस्तदा की कि पेट्रोलियम लेवी को टैक्स करार देते हुए आइन से मुतसादिम होने की बिना पर कलअदम करार दिया जाए। हुकूमत को वसूल शुदा लेवी के इस्तेमाल और मुसरफ की तफसीलात अदालत में पेश करने का हुक्म दिया जाए। एग्जीक्यूटिव को नोटिफिकेशन और SROs के जरिए अवाम पर गैर महदूद मालियाती बोझ आयद करने से रोका जाए। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं, प्रोफेसर डॉक्टर मसूद रबानी की बतौर वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर तैनाती पर मुबारकबाद देने के लिए चेयरमैन कुर्द सन्स इंडस्ट्रीज तलत ज़मीम अहमद, डॉक्टर आसिफ सुलेमान शाही, प्रोफेसर डॉक्टर शनावर वसीम अली, बिलावल अहमद, अंसर फारूक और TV टुडे के प्रोग्राम एग्री टुडे के मेज़बान सीनियर एंकर पर्सन सैयद मुगल ने यूनिवर्सिटी आमद पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कुर्द सन्स इंडस्ट्री के तलत ज़मीम अहमद, जो पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी मयार की लाइव स्टॉक मशीनरी मुहैया करते हैं और लाइव स्टॉक फार्मर्स की रहनुमाई के लिए गांव-गांव जाकर उनकी तरबियत का एहतमाम करते हैं। वाइस चांसलर को भरपूर ताउन का यकीन दिलाया और तलबा तालिबात की अमली तरबियत के लिए कुर्द सन्स इंडस्ट्रीज के लिए दरवाजे खोल दिए। साबका डायरेक्टर जनरल लाइव स्टॉक डॉक्टर आसिफ शाही ने पाकिस्तान में लाइव स्टॉक सेक्टर की तरक्की से मुतल्लिका तजावीज़ भी पेश की और आने वाले वक्तों में यूआस के तलबा तालिबात की ट्रेनिंग और इंडस्ट्री लिंकेजेस पर जोर दिया। सीनियर एंकर पर्सन सईद मुगल ने लाइव स्टॉक की बेहतरी के लिए यूआस की तालीमी खदमात को सराहा और मजीद उजागर करने के लिए TV टुडे के भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई और वाइस चांसलर को एग्री टुडे प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी। चेयरमैन शोबा फूड साइंसेज पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर शनावर वसीम अली ने डेयरी सेक्टर में तहकीक की जरूरत और क्वालिटी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के हवाले से अपने शोबा में किए गए काम के बारे में शुरका को आगाह किया और इस सिलसिला में तमाम इदारों की बाहमी इश्तराक की जरूरत पर भी जोर देते हुए हालिया वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली के वीएन और इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी ताल्लुकात को मजबूत करने के अमली इक़दामात की तारीफ करते हुए इजहार तशक्कुर किया। मैनेजिंग डायरेक्टर कुर्द सन्स बिलावल अहमद ने वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मसूद रबानी को यादगारी शील्ड पेश की और मुलाकात के लिए खुसूसी वक्त निकालने पर शुक्रिया अदा किया। GM मार्केटिंग कुर्द सन्स अंसर फारूक ने खालिस दूध की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए अपनी इंडस्ट्री की खिदमात का जिक्र किया। आखिर में यूआस के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मसूद रबानी ने तशरीफ लाने वाले दोस्तों के वफ्द का शुक्रिया अदा किया और यूनिवर्सिटी की खिदमात को मजीद आगे बढ़ाने के अज़्म का इरादा किया। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग को बेहतर करने के लिए तालीमी और तहकीकी मयार पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। तलबा तालिबात की इल्मी अमली तरबियत के साथ साथ उनकी अखलाकी तरबियत पर भी भरपूर जोर दिया जाएगा। मजीद ये कि इंटरनेशनलाइजेशन को प्रमोट करते हुए तलबा साथसा की दुनिया की बेहतरीन इदारों के साथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स की तरवीज की जाएगी।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पोलियो के खात्मे के लिए मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया, जिसके तहत सिंध, केपी और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। पंजाब में लाहौर समेत 10 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज किया गया है। पंजाब पोलियो कंट्रोल प्रोग्राम के मुताबिक लाहौर में मुहिम 24 मई तक, जबकि दीगर 9 अजला में 22 मई तक जारी रहेगी। रावलपिंडी, कुसूर, शेखुपुरा, मुल्तान, मियांवाली, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, डीजी खान और रहीम यार खान में जारी मुहिम के दौरान 61,90,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। सिंध में कराची समेत 20 अजला में 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है, जहां 58 लाख बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। केपी के 23 अजला में भी इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू कर दी गई। EOC केपी के मुताबिक 46 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। नेशनल EOC के मुताबिक मुहिम के दौरान 1 करोड़ 90 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे, जबकि 1,60,000 से ज्यादा पोलियो वर्कर्स इस कौमी मुहिम में फराइज सर अंजाम देंगे। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन असमत महमूद के हमरा शेख ज़ैद अस्पताल में ज़ेरे तामीर जदीद बर्न यूनिट का दौरा किया। इस मौका पर ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि 4 अरब रुपए की लागत से तामीर होने वाला जदीद बर्न यूनिट 2 साल में मुकम्मल किया जाएगा और ये मनसूबा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जानिब से जनूबी पंजाब के लिए बड़ा तोहफा है। उन्होंने कहा कि इस सहूलत से रहीम यार खान, राजनपुर, सिंध और बलोचिस्तान के आवाम को जदीद तिब्बी सहूलियात मैसर आएंगी, जबकि बर्न मरीजों को इलाज के लिए मुल्तान या दीगर शहरों जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेक्रेटरी सेहत पंजाब असमत महमूद ने कहा, पंजाब हुकूमत सेहत आमा के शोबे में इनकलाबी इकदामात कर रही है और मनसूबे की तकमील मुकर्ररा मुद्दत में यकीनी बनाई जाए। दौरे के मौका पर ज़हीर अनवर जप्पा, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम लगारी और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। नाज़रीन, जमहूरिया रवांडा की हाई कमिश्नर ने FPCCI रीजनल ऑफिस लाहौर का दौरा किया और बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात। FPCCI रीजनल चेयरमैन और नायब सदर ने कहा कि रवांडा पाकिस्तानी कारोबार के लिए मशरिक़ वस्ता और वस्ती अफ्रीका का अहम गेटवे बन सकता है और तंजीम अफ्रीकी ममालिक के साथ तिजारती शराकतदारी बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। हाई कमिश्नर ने कहा कि रवांडा 30 करोड़ सार्फिन की मार्केट तक रसाई का मरकज़ है और सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। उन्होंने करप्शन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस और कारोबार दोस्त पॉलिसीज़ पर जोर दिया। दोनों फरीक़ैन ने तिजारती वफूद और बिजनेस फोरम्स के जरिए ताल्लुकात मज़बूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। लाहौर में ICC एलीट पैनल एम्पायर एहसन रजा के एजाज़ में एक शानदार तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें उन्हें और दीगर नुमाया शख्सियात को खुसूसी मेडल्स और अवार्ड से नवाजा गया। नाज़रीन, निजी होटल में डी बोरे वॉलिन्स के बानी और चेयरमैन अब्दुल बासित खान ने एहसन रजा की बैनुल-अक़वामी खिदमात पर रोशनी डाली। इस मौका पर सैयद नूर औरिया, मकबूल जान, अब्दुल रऊफ चौधरी और अब्दुल बासित खान ने एहसन रजा को मेडल और शील्ड पेश की। तकरीब के शुरका ने एहसन रजा की बैनुल-अक़वामी सतह पर खिदमात को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया, जबकि एहसन रजा ने कहा कि ये इज़्ज़त अफजाई उनके लिए बड़ा एजाज़ है। तकरीब में औरिया, मकबूल जान, डॉक्टर अमजद साकिब, अशरफ खान, औरंगजेब लगारी, सैयद अरशाद और अज़मा रूमी और खालिद बेग को भी खुसूसी अवार्ड्स दिए गए। तकरीब में फिल्म और TV इंडस्ट्री की मुमताज़ शख्सियात समेत दीगर नुमाया कारोबारी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। बांग्लादेश ने दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान को जीत के लिए 437 रन का हदफ दे दिया। खेल के तीसरे रोज बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने पुरएतमाद तरीके से बैटिंग की। सलहट में खेले जा रहे मैच के तीसरे रोज बांग्लादेशी टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में 390 रन बनाकर आउट हुई। पहली इनिंग्स के खसारे को मिलाकर अब पाकिस्तान को ये टेस्ट जीतने के लिए रिकॉर्ड 437 रन बनाना होंगे। बांग्लादेश की शानदार बैटिंग और मजबूत गिरफ्त के बाद अब पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए क्रीज पर टिकना और इस मैच को हार से बचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। दूसरी इनिंग्स में बांग्लादेश की जानिब से मुशफ़िकुर रहमान ने 137 रन की शानदार इनिंग्स खेली। लिटन दास 69, महमूद उल हसन 52, मोमिन उल हक 30 और तेजुल इस्लाम 22 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान की जानिब से खुर्रम शहजाद ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। साजिद खान ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। हसन अली ने 2 जबकि 1 विकेट मोहम्मद अब्बास ने हासिल की।
मारका हक बुनियान अल मरसूस की तारीखी फतह के 1 साल मुकम्मल होने पर कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान ग्लासगो राना समर जावेद ने पुरजोश खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया। स्कॉटलैंड से नुमाइंदा टीवी टुडे माजिद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब में ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के चेयरमैन सैयद कमर रज़ा और वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी ओवरसीज पाकिस्तानी एहसानुल हक बाजवा ने खुसूसी शिरकत की। हॉल पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। तकरीब की सदारत करते हुए ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के चेयरमैन सैयद कमर रज़ा ने कहा कि मार्का हक के बाद दुनिया में पाकिस्तान का एक नया ताकतवर और शानदार इमेज उभर कर सामने आया है, जिसके बाद दुनिया के कई ममालिक अपने दिफा के लिए अब पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी ब्राय ओवरसीज पाकिस्तानी एहसानुल हक बाजवा ने कहा कि जंग में इबरतनाक शिकस्त के बाद मजीद तबाही से बचने के लिए भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमरीकी सदर ट्रंप को कहलवाकर जंग बंद करवाई। तकरीब से खिताब में कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान राना समर जावेद ने कहा कि पाकिस्तान ने खुद से 5 गुना बड़े मुल्क भारत को, जिसके पास जदीद तरीन असलहा था, बदतरीन शिकस्त दी। पाकिस्तान के मशहूर गुलकार अरशद महमूद ने अपने गीतों, मिली नगमों और म्यूजिक के प्रोग्राम के जरिए हाज़रीन महफिल के दिल खूब गरमाए और शुरका सब्ज़ हिलाली परचम के लिए झूम उठे। मैं मीडिया का भी दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पर तो चंद 100 लोग मौजूद थे, मगर मीडिया के तवस्सुत से ये मैसेज जो है तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों तक जाएगा, पूरी दुनिया तक जाएगा। मिलियंस ऑफ लोग इसको सुनेंगे और देखेंगे। और मैं आपके तवस्सुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अब वक्त आया है कि मार्का हक तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने जीत लिया है। और मैं सलाम पेश करता हूँ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को, जिन्होंने जिस अंदाज में इस जंग को स्ट्रेटजाइज़ किया, उनकी उस सलाहियत को दुनिया उसका इकरार भी करती है, मानती भी है। जिन्होंने आज बहुत अच्छे तरीके से ग्लासगो में मार्का हक को 1 साल हो गया उसको सेलिब्रेट किया। मैं आप दोस्तों का भी मशकूर हूँ कि आपने भी बढ़ चढ़ कर, मीडिया ने भी के दोस्तों ने हिस्सा लिया। मैं समझता हूँ देखें, आज पहली तो फर्स्ट कमेमोरेशन थी मार्का हक की और ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस की, जिस तकरीब का एहतमाम जो है हमारे अपना पाकिस्तान कौंसिल ग्लासगो ने यहाँ पे किया है। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी जनाब सैयद कमर रज़ा साहब और जनाब चौधरी एहसानुल हक बाजवा साहब का मशकूर हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए हमारी दावत पे और इस ओकेजन को इन्होंने ग्रेस किया। तो यकीनन आपने मार्का हक की बात की है, तो मार्का हक इसलिए कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का जो है बहाना बना के और एक साजिश को रचा के जो इंडिया ने जो है पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को चैलेंज किया था, तो हमारी कौम ने, बहादुर मुसल्लह अफवाज ने और सिविल एंड मिलिट्री पॉलिटिकल लीडरशिप ने। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।